पर लगा नहीं कि यार चलो ये सीए में इतनी मेहनत की है, सीए फाइनल तक मैं पहुंचा हूँ, चलो सीए भी कंप्लीट कर ही लेते हैं एक बार में। I wanted to move to core finance. So I came back to Delhi. I worked for 2 years in a Noida-based firm. So there I was into derivative trading. जब मैंने सीए किया था तब तो होता था कि जो सीए है वो ऑडिट कर लेगा, टैक्सेशन कर लेगा, राइट, अकाउंटिंग में चला जाएगा, कोर फाइनेंस में नहीं जाएगा। Core finance requires some certain skill sets. तो उस टाइम पर तो स्टॉक मार्केट का चस्का सबको चढ़ा हुआ था, तब तो मार्केट एकदम पारस की तरह थी, जो भी मतलब हाथ लगाता तो सोना बन रहा था। कि पापा ने मना क्यों किया? वो तो वेट तो मतलब वन ऑफ द फाइनेंस कॉलेजेस, आईआईटी के बाद उसी का नाम है। व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट बैंक जिसमें आपका प्लेसमेंट हो गया है, तेरा सीए नहीं हुआ, एमबीए तुम्हारा डिसेंट कॉलेज है लेकिन आईएम्स टाइप नहीं है, एंड यू आर गेटिंग इनटू अ कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल। शायद मेरे पास वो नेगेटिव पॉइंट है या इट डज नॉट मैटर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। Hello friends, welcome back to the channel. Today's podcast is special because we have special guest Anish Minocha, who has recently certified from the Wall Street School in the flagship financial modeling and valuation program and has recently got one of the highest packages offered by the Wall Street School. So this podcast is about his journey, his learnings, and there would be a lot of inputs that we all can take from his life. So Anish, welcome to this podcast. Good afternoon, sir. Good afternoon. So Anish, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में यार, मतलब starting from the beginning, आपने क्या किया हुआ है, your qualifications for the viewers. So I did my 12th in 2008 from Okay. science stream. कहाँ से आप, दिल्ली से हैं या कहाँ से? I'm from Delhi, sir. ठीक है. Then like my father told, like it's more of you can go into the commerce stream because he's also CA. So Okay. he tried to persuade me towards the commerce stream. So I moved towards the commerce. And then in 2015 I did my CWA, which is cost accountancy, with All India rank 5th. And All India rank 5th in cost accountancy. cost accountancy. बहुत So बढ़िया. I was awarded a gold medal and was called by the institute in the Kolkata. Wow. So along with that, I was in my CA final also. So I wanted to move into more of the core finance. So I joined MBA program from Voxens University in Hyderabad. So initially, the Voxen only placed me as a general manager finance after the college is over. So it was a 1-year program. तो कहीं उस टाइम पर लगा नहीं कि यार चलो पापा की अच्छी प्रैक्टिस है, मैं पापा को ज्वाइन कर लेता हूँ उसमें. So he's more into stock market trading. ओके. तो उनकी कोर मतलब वो एज अ सीए उनका क्वालिफिकेशन है, Yeah. लेकिन इट्स मोर इन द स्टॉक मार्केट साइड. Stock market, yeah. ठीक है. So then I did my MBA, and before MBA I also cleared my CFA L1. So मेरा interest was into the core finance. So I was placed as a GM finance then Voxen University. So 1 year I worked there as a finance head. I managed the people, managed work, was directly reporting to the chairman. So it was a good experience for 1 year. So then I wanted to move to core finance. So I came back to Delhi. I worked for 2 years in a Noida-based firm. So there I was into derivative trading. डेरिवेटिव ट्रेडिंग. Yeah. ओके. ये कौन सी ईयर की बात है? So it's around 19 to 21, कोविड वाला टाइम. COVID वाला time. ठीक है. 22. तो उस टाइम पर तो स्टॉक मार्केट का चस्का सबको चढ़ा हुआ था, हर कोई डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहा था. यहाँ स्टॉक मार्केट में किसी ना किसी तरह से तो कोई ना कोई जुड़ा हुआ था. Yeah, everyone was connected. So एक flow में I was also there. गॉट इट. So 19 से 22. So I was working there. Then I wanted to move into the more of a equity side. So I joined another firm in Delhi. So I was into financial modeling there. So we used to make financial models for the from scratch for the US based companies. 7 months back I changed a job to another firm. So here also we used to make a financial models, do the valuations of DCF valuation. Not into detailed one, but basically into valuation portion. So currently I am working there. +2 में योर फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपने सीए परस्यू किया, Yeah, राइट. सीए फाइनल तक गए, fine. तो सीए फाइनल के अटेम्प्ट्स दिए, Yes, a couple of attempts I gave. तो उसके बाद Before third attempt मेरा cost accountancy clear हो गया था. अच्छा So एक डिग्री हो गई थी. So I was also satisfied. Dad was also कि satisfied. चलो एक डिग्री तो है, एक प्रोफेशनल डिग्री है मेरे पास. हो गई. पर लगा नहीं कि यार चलो सीए में इतनी मेहनत की है, सीए फाइनल तक मैं पहुंचा हूँ, चलो सीए भी कंप्लीट कर ही लेते हैं एक बार में. कर सकता था बट थोड़ा इंटरेस्ट कोर फाइनेंस की तरफ जाना स्टार्ट हो गया. तो क्या वो सीए डिग्री से नहीं मिला आपको? सर नॉलेज तो मिल गई. वो तो एक वास्ट डिग्री है. वी कैन गो इनटू ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्सेशन एज वेल एज कोर फाइनेंस आल्सो. कोर फाइनेंस के लिए आई वांटेड टू मूव इनटू एमबीए और सॉर्ट ऑफ, सो दैट मेरा प्रोफाइल कोर फाइनेंस. पर ऐसा क्यों है, मतलब एक नॉर्मल एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, ऐसा क्यों माइंडसेट होता है कि जो सीए होता है वो शायद कोर फाइनेंस प्रोफाइल में नहीं जाता? ये ऐसा माइंडसेट है अभी भी
मतलब हमारे टाइम पर तो होता था, जब मैंने सीए किया था तब तो होता था कि जो सीए है वो ऑडिट कर लेगा, टैक्सेशन कर लेगा, राइट, अकाउंटिंग में चला जाएगा, कोर फाइनेंस में नहीं जाएगा. Like core finance requires some certain skill sets. Like Excel strong होना चाहिए. You need to make like the financial models. So rather than audit taxation like traditional things for CA, so this core finance require another like various skills. Like आपको मॉडलिंग आनी चाहिए एंड आपके कोर फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, डिटेल कॉन्सेप्ट्स. सो दैट्स द थिंग मैं एमबीए ज्वाइन करना चाहता था. तो एमबीए में आपने ऐसा क्या सीखा जो आपने सीडब्ल्यूए में या आपने सीए में नहीं सीखा? So it was more like a general management program. So it was like managing the work, like team handling. So it was like organizational behavior was their subject. So like when you have a like uncertainties in your team, how to handle them. And also in MBA, we used to get a project at around 7 p.m. And we need to submit till 3 a.m. in the morning. So वो pressure handling, how to handle the pressure, deadlines को meet करना. And project deadlines and project को पूरा manage करना, working in a team and then making PowerPoints and presenting to the teachers. So ये सब तो like CA cost accountancy में नहीं है. So like they are, you study and you give exams. So MBA में these are the skills we like gain. अंडरस्टूड, फेयर एनफ. तो कहीं ना कहीं पर बिकॉज सीए बात कर लें या सीडब्ल्यूए की बात कर लें, उसमें इट इज मोर ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स. यू नो आपके पास बुक्स आ जाती हैं, आप अपनी स्टडी करो, आप ट्यूशंस लो या आर्टिकलशिप करो, राइट, और उस तरह से करो. एमबीए में तो आप जाकर स्पेसिफिकली पढ़ते हैं तो और टीम में काम करते हैं. Yes. तो एमबीए में तो आप टीम में काम करना सीखते हैं और शायद कॉर्पोरेट इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने वो वाला देखा हुआ है. Yes. लेकिन जो कोर काम होता है, कोर नॉलेज होती है, वो तो आपको सीए में मिलेगी या सीडब्ल्यूए में मिलेगी. तो वो एमबीए में भी क्या उस लेवल की ग्रैनुलैरिटी ऑफ नॉलेज थी या नहीं थी? As a core knowledge नहीं है, because MBA में each subject maybe 30 hours is of each subject. अब 30 hours में like हम किसी भी में भी operations या marketing या finance हो core knowledge नहीं ले सकते. So it was more of a like management things and learning these skill sets of managing and all. अंडरस्टूड. So उसके लिए like CFA L1 मैंने करा था. So like CFA is more of a core finance. ठीक है. So उससे मेरे को थोड़ी हेल्प मिली है. तो जैसे आपने बोला कि आपने सीए फाइनल में छोड़ा, Yeah. ठीक है, ये और क्योंकि आपका सीडब्ल्यू हो चुका था, चुका है. ठीक है, आपने एमबीए फाइनेंस किया. Yeah. तो आपने बोला कि मेरे पास तो डिग्रीज आ चुकी थी, Yeah. एक प्रोफेशनल डिग्री तो है मेरे पास, तो फिर सीएफए का क्यों सोचा? CFA before MBA was cleared. अगर आप एमबीए पहले कर लेते और सीएफए उसके बाद सोचते करने का, या आई डोंट नो मैं ऐसे कैसे सोचता. मतलब मैं उस समय मोमेंटम में था कोर फाइनेंस में जाने के लिए, तो L1 क्लियर कर लिया. L2 आई वाज प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग कोविड, पर वो 2 times वो पोस्टपोन हो गए. तो फिर उसके बाद मोमेंटम टूट गया ड्यूरिंग 2020. तो फिर अभी आई एम स्टिल L1 क्वालिफाइड ओनली. स्टिल L1 क्वालिफाइड, ठीक है. एंड डू यू इंटेंड टू गिव लेवल 2 एंड लेवल 3? राइट नाउ लाइक from your school I have got a job, maybe after a couple of months I can Think of restart being- my ठीक है. L1 L2 sorry. बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस. Yes, sir. ठीक है. तो आप की जो फर्स्ट जॉब थी, Yes. राइट, उसमें आप एमबीए थे, राइट, आपको जॉब इसलिए मिली बिकॉज एमबीए था, बिकॉज आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था. Yes, sir. ठीक. तो जो प्रोफाइल था वो कितना वेरी सिमिलर था जो आपने एमबीए में पढ़ा था? Yes, sir. So like the university with from which I was studying, Vauxhall University, they only placed me like it was 4-round interview. So they only placed me in their university. So it was more like so like my position was general manager finance. So it was more like a managing a team of handling 50 people. So it was in the operation as well as finance and reporting directly to the chairman and vice president. ओके. So it was more of a management like job. तो उसमें जो आपने एमबीए में पढ़ा था, उसके साथ कुछ कनेक्शन था उसका? Yes sir. So like initially issues आ गए, like different managers के साथ conflicts हो गए. So वो resolve, you go back, you think कि कैसे you can resolve. So you have studied it, so it can recur in your mind. So वो चीज़ वहाँ पे काम आई. So solving conflict of interest between different teams, managers, and of course कि कोई manager नाराज़ भी नहीं होना चाहिए, because if today he needs my help, maybe tomorrow मुझे उस manager की help चाहिए हो. तो पीपल मैनेजमेंट अच्छे से आपने सीखा वहाँ पे? Yeah, and practical also I learned. अच्छा, ठीक है. तो उसके बाद जब आप दिल्ली आ गए वापस, Yes, sir. तो वहाँ पे क्या आपको साउथ में क्या होम सिकनेस हो गई, या था कि अब यहाँ पेरेंट्स ने बुला लिया कि चल भाई बहुत हो गया, जितना एक्सपेरिमेंट करना था वापस आके मेरे साथ रहे? हाउ वाज इट? सर दिल्ली में लाइक मैं कोर फाइनेंस डेरिवेटिव्स में चला गया. ओके. इनटू ट्रेडिंग में. ओके.
सो वो मैनेजमेंट जॉब थी हैदराबाद की, ये दिल्ली वाली। फिर कोर फाइनेंस में जाना था तो मुझे दिल्ली में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो मैंने कपल ऑफ ईयर्स 2.5 years इसमें काम करा इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। और तब तो मार्केट एकदम पारस की तरह थी, जो भी मतलब हाथ लगाता तो मतलब सोना बन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पैसे कमाए कंपनी ने या कैसे था? यस सर, वी यूज्ड टू जनरेट अल्फा ऑफ 5% मोर देन द मार्केट रिटर्न। अच्छा, वो तो अच्छा होता वाज है। गुड। ओके। थोड़ा डेरिवेटिव ट्रेडिंग थोड़ी सी प्रेशराइज रहती है। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कमाना है। या वो और मोस्ट ऑफ द पीपल पैसा कमा के जाते हैं। बिल्कुल सर, और रिस्की भी रहता है। डेरिवेटिव्स जनरली मोर रिस्की है एंड रिटर्न्स भी उस हिसाब से गुड है। सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस देयर। ओके, तो फिर छोड़ा क्यों? सर like it was a like 2.5 years, like it was initially तो learning थी, then we used to trade with their like basic SOPs and all, so it was a good experience। फिर थोड़ा equity का इसी core finance में equity वाले lines में जाने का like मन था। गॉट इट। so then move to another firm for in the equity domain। ठीक है, तो फिर आपने ये कोर्स करने का क्यों सोचा कि चलो अब मेरे पास मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस हो गया है, CWI की भी डिग्री है, CA फाइनलिस्ट हूँ, राइट, CFA कर रहा हूँ, मतलब मैंने मैनेजमेंट भी किया, मैंने डेरिवेटिव्स भी किया, तो आपका काफ़ी डाइवर्सिफाइड सा पोर्टफोलियो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसका कैसे सोचा कि चलो अब मुझे फाइनेंस में जाना है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग फिर करने का क्यों सोचा आपने? सर जिसमें लाइक करंट कंपनी विच आई एम वर्किंग, इट्स अ गुड कंपनी, लाइक वी आर मेकिंग द मॉडल्स एंड ऑल, बट वैल्यूएशंस ओनली सिर्फ लाइक इनिशियल लेवल्स पे वैल्यूएशन है, लाइक DCF एंड ऑल। बट आप इसको डिफाइन करोगे कि इनिशियल लेवल पे वैल्यूएशन, इसका क्या मतलब हुआ? इनिशियल मीन्स लाइक वी आर मेकिंग अ फाइनेंशियल मॉडल्स फॉर अ कंपनी, लाइक कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, सो वी लाइक मेक देम इनटू एक्सेल एंड प्रोजेक्ट द future revenues and expenses for the company, and give it to the US based maybe the intermediaries। so and valuations इसी में projections में valuations we do, but ये जो valuation का काम है it's not into a deep like deeply नहीं काम है वो। ओके, वो सिर्फ like couple of कुछ आ जाते हैं projects, so we do। so I wanted to move more into like further into the valuations and all। जो हार्डकोर फाइनेंस का hardcore finance है, like it's a next step of modeling। so that's why I searched for like on Google like different like courses and all। so कुछ some courses were correspondence and some courses were like face to face or interactive one। so that's why I like wanted to move into this, join the course। Understood. And I can talk about Anish that during the workshop इन्होंने सब assignments complete किए थे। He attended all the classes very religiously, dedicatedly। और हम ये बोलते होते हैं अपने स्टूडेंट्स को भी कि यार हमारे पास कोई मैजिक बैंड नहीं है ऑफ द प्लेसमेंट्स, हम प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गोना बी अ जर्नी टुगेदर, इट्स गोना बी अ 2-way ट्रैजेक्टरी, जिसमें हम साथ में मिलकर करेंगे। और अगर आप अपने ऊपर उतनी मेहनत करेंगे जितनी हम आपके ऊपर करेंगे, तो कोई रीज़न नहीं है कि अच्छी प्लेसमेंट्स ना हो जैसे अनीश की हुई हैं, राइट। तो वेरी वेरी हैप्पी विद योर प्लेसमेंट्स अनीश। थैंक यू सर। बट इफ आई गो बैक टू एन 18-year-old अनीश, जब उसने +2 कंप्लीट किया था, वुड यू वांट टू चेंज एनीथिंग देन हाउ योर करियर हैज़ बीन, कि यार अगर ये नहीं तो अगर ऐसे कर लेता तो शायद बेटर होता, या आर यू हैप्पी इन योर करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स? सर इनिशियली मैं जैसे साइंस से था, सो आई क्वालिफाइड विद वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। वो तो अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा बहुत कॉलेज अच्छा कॉलेज है, बट फिर लाइक डैड ने बोला कि यू ट्राई फॉर अ CA, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर फिर दे दियो विट का एग्ज़ाम। अच्छा, और लकीली फिर मैं CA की मेरिट लिस्ट में, फाउंडेशन की मेरिट लिस्ट में आ गया। तो मेरा सपना तो वहीं टूट गया विट का, कि वो करना ही नहीं है। वो करना ही नहीं। कि पापा ने मना क्यों किया? वो तो विट तो मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस, IIT के बाद उसी का नाम आता है। या IIT NITs के बाद एट दैट पॉइंट तो वो था ही टॉप में। पर वो ये वो CA है तो एक वो माइंडसेट है कि वो भी इस लाइन में आ जाए, कॉमर्स साइड एंड ऑल। तो कभी कभी इनिशियली लाइक 4-5 years पहले लगता था कि विट कर लेता तो एक अलग डायरेक्शन में चलता है नॉल, पर ठीक है, राइट नाउ इट्स आल्सो गोइंग गुड। ठीक है, तो ऐसे कोई रिग्रेट नहीं है? नहीं, अब नहीं है। ठीक है, इनिशियली लगता था, बट इट्स ओके। और CA, अब CA फाउंडेशन में आप रैंक है आपका? मेरिट लिस्ट में था। हाँ, ठीक है। और फिर CA अभी नहीं किया है, तो उसका रिग्रेट है या कोई फर्क नहीं पड़ता? इनिशियली लगता था लाइक 7-8 years बैक, पर इनिशियली हर लाइक चीज़ की एक एज होती है। पहले आई थिंक पढ़ाई की होती है, एंड देन आप जॉब स्टार्ट करते हो, देन मैरिज की भी आ जाती है, देन बेबीज़ की आ जाएगी, तो एंड हेल्थ तो साथ साथ में, तो वो सर एज वाइज लगता है, बट ठीक है, मोर देन अ CA
अब जो ज़रूरत है इट्स ऑल अबाउट लाइक मनी एंड हेल्थ, सो अब उस पर फोकस है बहुत बढ़िया दैट यू नो दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी कम्स यू नो विद टाइम विद टाइम। राइट। और आपको प्रोफेशनली अब कितना टाइम हो चुका है, मतलब यू बीन वर्किंग फॉर हाउ लॉन्ग? 6-7 years 6-7 ईयर्स। ठीक है, बढ़िया। अभी जब आप व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट बैंक जिसमें आपका प्लेसमेंट हो गया है, कहीं उन्होंने पूछा कि यार तेरा सीए नहीं हुआ, राइट? एमबीए तुम्हारा डिसेंट कॉलेज है लेकिन आईएम्स टाइप नहीं है, यस सर, राइट? एंड यू आर गेटिंग इनटू अ कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल। तो कहीं लगा था कि यार शायद मेरे पास वो नेगेटिव पॉइंट है, या इट डज नॉट मैटर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम? सर इनिशियली उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखा विच इज़ अराउंड 3 to 4 years इन टू कोर फाइनेंस डोमेन, एंड जो मैंने जो कोर्स करा अभी 3 to 4 months में, तो सर इसमें जो मेरे को डीप नॉलेज मिली है उसी पे मेन फोकस था कि जो इसको नॉलेज मिली है हाउ कैन ही अप्लाई दिस नॉलेज टू आर लाइक आर इन द कंपनी। सो सीए नहीं करा, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। एमबीए अगर आईएम से नहीं करा वो भी कोई क्वेरी नहीं थी। तो उन्होंने एक्सपीरियंस देखा एंड जो उन्होंने नॉलेज दी, नॉलेज देखी जो मैंने आपसे लाइक 3-4 months में गेन करी, दे वर ओनली मोर फोकस ऑन दैट वन। उससे मतलब कि मैं मतलब नॉट द आईएम से हूँ, या मैं सीए नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई गॉट इनटू अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल यू नो पैकेज इन अ वेरी गुड कंपनी Yes, एट अ वेरी गुड प्रोफाइल। यस सर। ठीक है। So it was more of like कि currently how much knowledge he has। डिग्री एक सर like नाम के साथ जुड़ जाती है, like आप भी सीए हो, मैं भी कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, तो डिग्री के साथ साथ nowadays the company looks like कि उसके पास skills set क्या है। एग्जैक्टली। कि वो मेरी कंपनी में आएगा, डिग्री तो ला रहा है, इट्स गुड, पर वो पहले दिन आएगा काम क्या करेगा, तो स्किल्स चाहिए। दैट स्किल्स आई थिंक आई गॉट फ्रॉम दिस मॉडलिंग कोर्स। लाइक आप अभी बता भी रहे थे कि सिर्फ आप पढ़ा दोगे एंड लाइक हम ओके कि हमारी जॉब अब लग जाएगी, सर वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कंपनीज आज कंपनी को पता चल जाता है क्वेश्चंस पूछ के कि लाइक इसको खुद की कितनी नॉलेज है। करेक्ट। सो लाइक वीकेंड्स पे आप क्लास लेते थे एंड देन इट वाज 5 days फॉर अस, लाइक फॉर मी। सो मैं ट्राई करता था, मैं उसको जॉब पे भी था तो चलो प्रैक्टिस करता रहा हूँ, इवनिंग में कुछ 2 hours या 1.5 hours कुछ निकाल पाऊँ, एंड वीकेंड्स में अराउंड 4-5 hours दूँ, ताकि मैं वो स्किल्स अपने अंदर और इनकलकेट कर लूँ, बिल्कुल। सो डैट मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ। राइट, आई रिमेंबर यू वर पार्ट ऑफ द वीकेंड बैच। वीकेंड में तो 5 days आपका वर्किंग होता था, वर्किंग सर। 6th day एंड 7th day आपकी वीकेंड पे क्लासेस होती थी, यस सर। राइट? एंड आई नो दीज आर रिगरस क्लासेस। तो फिर आप कैसे आपने अपने आप को डिसिप्लिन बनाए कि 7 days वर्क करना है फॉर 3.5 months? वो जैसे अभी बात करी है कि लाइक आपने पढ़ा तो दिया 3 to 4 hours, ज़्यादा आई थिंक 6 hours की क्लास थी, तो सर पर उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे देन नेक्स्ट वीकेंड इट्स जस्ट लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि आप वो जो स्किल्स आपने बढ़ा दिए हैं तो उतनी स्पीड भी नहीं आएगी। वो एक्सेल स्किल्स आने चाहिए, वो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होनी चाहिए, तो टाइम निकालना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़े वाइफ भी परेशान हो गई क्योंकि फिर उसको टाइम नहीं देना पड़ रहा था। बट शी उसको समझ आ गई कि ठीक है, ही इज डूइंग समथिंग गुड फॉर द लाइक हिमसेल्फ एंड द फैमिली। Got it. सो रोज 1.5 hours की प्रैक्टिस एंड देन वीकेंड्स पे। अंडरस्टूड। हाँ यार देखो, इट इज स्पेशली एट अ सीनियर लेवल, वंस यू मैरिड, वंस यू हैव किड्स, वंस यू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो हमेशा इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, Yes, sir. राइट? क्योंकि वो सेक्रीफाइसेस शायद आपके अकेले के नहीं, आपकी फैमिली के भी हैं, Family तभी मैजिक्स होते हैं ना यार, Yes, sir. राइट? तो हम तो एक शायद सिर्फ एक जरिया है, राइट? बट कहीं ना कहीं से वो ब्लेसिंग्स तो चाहिए। वो मिलती है ना यार, बिल्कुल। तो फैमिली से मिलती है। सर उसको कंपेंसेट करने के लिए अभी जैसी जॉब लगी है इन अ गुड आईवी फर्म एट अ गुड पैकेज, तो मे बी जब सैलरी मिलेगी तो उसको कुछ लेके देना पड़ेगा। नाइस, वो बिल्कुल बनता भी है। शी डिजर्व्स इट, शी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू यू नो कि अगर हम वो चीज़ करें, उस चीज़ में अगर काम करें जो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है, तो काम करने में भी मन लगता है Yes, और अच्छा लगता है, बिल्कुल। और फिर हम उसी तरह से एक अच्छी हेल्दी रिस्पेक्टेबल लाइफ हम लीड करते हैं। बिल्कुल। ग्रेट अनीश, यू नो इट वाज ग्रेट टू नो यू। ऑफ कोर्स हम जब ट्रेनिंग्स में होते हैं तो एक थोड़ा फॉर्मलाइज्ड सेटअप होता of है। course, इस बार गुड दैट यू केम ओवर एंड वी कुड हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन, एंड आई होप इट इज़ ऑल्सो लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस एज व्यूअर्स कि इनिशियल फेज में जो मर्जी डिग्रीज ले लो, इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली कंपनीज रिस्पेक्ट द नॉलेज. So we are slowly and gradually evolving towards skill-based things at our end,
than the fanciness of the degrees. Right? Thank you, Anish, and wishing you all the best for your future. एंड सर थैंक यू यू एंड आपका जो वॉल स्ट्रीट स्कूल है एंड उनके प्लेसमेंट्स टीम, तो दे वर वेरी हेल्पफुल, लाइक प्लेसमेंट टीम्स आर वेरी हेल्पफुल, लाइक वो हमें थोड़ा मॉक में प्रिपेयर भी करा देते थे कि लाइक दीज आर द सैम्पल क्वेश्चंस, आप प्रिपेयर करो, इसके बारे में स्टडी करो, कुछ क्वेरीज हो तो हमसे पूछो, एंड सो दे वर क्वाइट हेल्पफुल, एंड ऑफ कोर्स फैकल्टीज़ भी हम व्हाट्सएप पे पूछते थे एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल. Sure. So overall, it was a good experience, and yeah, I was what I was dreaming. I got. Fantastic. So great that we could be of help to you, and wishing you all the best. Thank you so much.